guys, welcome back to my channel. So मैं आ गई हूँ अपने घर 200 साल बाद. So अब क्या करते हो इतने दिन बाद घर आके? तो अपने पुराने खजाने को खोजते हो. तो मैंने भी कुछ खजाने खोज लिए. So report guys. Alright, पूरा है ना. ऐसा भाषण मारेगा ना, ऐसा भाषण मारेगा. দেখ এগুলো দেখ কি কত এলো আমার ক্লাস 7-8 রিপোর্ট কার্ড প্লাস পুরো বছরের কি কি রেকর্ড ফাইল, একাডেমিক রেকর্ড ফাইল. চেহারাগুলো দেখ, পুরো ডাকু মঙ্গল সিং কোনো ভাইটাই বোন. হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ क्या नहीं ডাকু মঙ্গল সিং আর শোলের ডাকুটার নাম জানি কি? ডাকু মঙ্গল সিং. डाकू मंगल सिंह के बहन. What if अगर होगा तो. Hey guys, welcome to my channel. ये है कुछ और की academic record files of class 7-8. तो आज देखते हैं क्या मिलता है हमें इधर. वाओ रिपोर्ट कार्ड्स. इतना अटेंडेंस तो मैंने जिंदगी में अभी तक मतलब दिया है. Not in 11-12. I think I had 0% attendance. Not 0. 87 out of 98, 100 out of 102 attendance. Nice. A1. My goals: to become a doctor. Come what may. My strengths, patience जो है ही नहीं अभी. My interests and hobbies remains the same. Dancing, drawing, singing, etc. All those drawings, I have no more connection with drawing. Okay, I do sometimes, but no more. Activity, sports, okay. Gardening. Zindagi mein nahi kiya. What's this? My goal is to be a doctor. It remains the same. My strength: study for long hours. No more. बचपन में सब अच्छा होता है. सब अच्छा. तो strength की ना? Strength की तो. देखो मैंने strength. Study for long hours. A strength ना. Physical strength ना. तो की मैंने power की मैंने की strength. যেরকম আমার তখন ছিল স্টাডি ফর লং আওয়ার্স, হ্যাভিং পেশেন্স, এগুলো আমার স্ট্রেংথ ছিল এক কলে. নো মোর. মাই ইন্টারেস্ট ইন হবি সুইমিং था एक समय. आर्ट एंड डांसिंग. A1. I wish this were my report cards. अभी भी पर नहीं है. ओके ठीक है. बाकी सब तो आरो तो असल रे कोई नहीं. ये फिलहाल क्लास 7 रोल नंबर 22. यार इस चीज़ के लिए हमें कितनी मार पड़ी है. ये डायरी के फ्रंट पेज में होता था. हमारे क्लास टीचर बोला करते थे कि ये लेके आना.
तो हम लोग हमेशा भूल जाते थे। और इधर ना पेरेंट्स का साइन करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने खुद ही अपना साइन डाल दिया, तो पकड़े भी गए थे कुछ। मैंने नहीं किया था। वेरी गुड। वाह, पहला पेज मैथ्स का है। इवन देखना आप लोगों में नहीं है सब क्या 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 मतलब से क्या हुआ, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा। वाह, हैंडराइटिंग यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, मेरा एग्जाम में हैंडराइटिंग हमेशा इतना गंदा क्यों होता है। और थोड़ा खराब थे कि नहीं की एग्जाम में हैंडराइटिंग है खराब थे तो মুখটা দেখো আমার তো মা কাকে ঠেং বকের ঠেং পুরা কোনো পদ্মেই নাই छी। एग्जाम में बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग देख ना কি ঘটিয়া হ্যান্ডরাইটিং দেখ। ছি আমার হ্যান্ডরাইটিং তো এরকম না কত সুন্দর করে যেজের মতো দেখ। এখনও সেম কিছু বলে না, এক্সামে আমার হ্যান্ডরাইটিং সবচেয়ে ঘটিয়া থাকে। চাই না নার্ভাসনেসের লেগে কি টাইম স্টার্টিংয়ে কাটাকাটি দিয়ে শুরু হয়, দেখি বুঝে যায় মানে স্টুডেন্টটা পুরো নার্ভাস নাকি। দেখবি স্টার্টিংয়ে কাটাকাটি থাকবেই, ফার্স্ট পেজে কাটাকাটি দুনিয়া দেখ। Wow, impressed. Graph paper is interesting part. Yeah. Wow, English. ऐसे कमन तो ऐसे ही मैंने जी इच्छा लगती है तो हमारा ऐसा सुनो मैंने मेरा ऐसे सुनिए। क्लास 11 फाइनल एग्जाम का ही है शायद, हाँ फाइनल एग्जाम ऐसे 2 A religious festival I like most is the topic. Okay, so it goes start. The festival I like most is the Durga Puja. Actually, I like Holi and Diwali too, but Durga Puja is my favorite. Favorite का spelling पता था, but I missed the U. Teacher का red sign भी है, Q लगा दिया है। Mainly for Bengalis, the Durga Puja is the main puja. The Durga Puja. Mainly for the Bengalis, the Durga Puja is the main puja. The Durga Puja. In Durga Puja, the menstruation of goddess Kamakhya is celebrated. Menstruation in maths, not menstruation. Menstruration. पता भी नहीं होगा शायद मुझे क्या होता है तब, क्योंकि I have no idea what menstruation is all about back then. Zero idea, zero. So MENS लिखा है मैंने, MENSTRUA की जगह menstruation maths डाल दिया. The mathematics of goddess Kamakhya is celebrated during Durga Puja. कुछ भी. Okay, this is the best. और टीचर ने अंडरलाइन भी क्या हुआ है, ये नहीं कि सुधार रहा, टीचर को भी समझ नहीं आया क्या मैथ्स कर लिया क्या कहते हैं। This is the best festival for me. सबके लिए भाई, सबके लिए होता है बेस्ट फेस्टिवल। मतलब कुछ भी लिख दो यार, एग्जाम स्ट्रेस में मार्क्स पाना है, कुछ भी लिख दो, भर दो। So this is the best festival for me. The people buy new clothes of different types. वो कुछ शेरवानी पहने कोटा जब मैं उसमें नहीं मैं दुर्गा पूजा पहनने में के कोटे दिन में नहीं हुई ना घरे जीरो तो ये बोले 10টা 20টা की কাপড় Durga Puja. Zero. We don't wear. Not every Durga Puja is best. 2020 proved it. Okay. The people buy new clothes of different types. This time I have gone to most beautiful Durga Puja, which was likely for the children and also for me. No full stop. No full stop नहीं. Okay. फिर से समझ नहीं आया. टीचर को कैसे समझ आएगा यार, टिक मार के रखा है। The people who buy new clothes of different types. Okay, this time I have देखा नहीं, I had होना चाहिए था। I have gone to most beautiful Durga Puja, okay, which is likely for the children and also for me. Okay, the theme was of Dholakpur. छोटा भीम আমার মনে পড়ছে আমরা ড্রয়িং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছিলাম ওটাতে। ঢোলকপুর the favorite cartoon for children. I hate छोटा भीम नाम, कारण छोटा भीम में सिर्फ भीम ही जीतता, सब चीजें करता है सिर्फ भीम, उसके दोस्त भी बेकार गए,
सिर्फ भीम इज नॉट लालची, भीम इज पावरफुल, उसको ही राजा बना दो ना. मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे निठर कोई राजा है तो राजा इंद्र वर्मा. भीम को बुलाओ, भीम को बुलाओ, भीम को बुलाओ. क्यों राजा बैठो, भीम को पट्टी पहना तो बैठा दो ना. बकवास का राजा बना के बैठा है. ओके ओके, it was very good cartoon. It was very good. बस खत्म. It was very good. In Kolkata, people celebrate Durga Puja with lots of fun and enjoyment. हम तो करते नहीं हैं. Lots of fun and enjoyment is not applicable in other parts of India, except Kolkata. Only in Kolkata. This time in Durga Puja, it was not very cold, so I was able rag. Okay, this time in Durga Puja, it was not very cold, so I was able to मतलब skip हो गया. able to मैंने माइंड में कर लिया, फिर मैंने रीचेक भी नहीं किया और टीचर ने भी नहीं किया होगा शायद. डोंट नो कितने मार्क्स था, मुझे 4.5 मिला है. able see the whole okay, समझ नहीं आया. This time in Durga Puja, it was not very cold, so I was able see the whole program conducted in the field during puja. No sense. अच्छा, एरको मुझे लगता मुझे ऐसा अगर लिखते कि it was not really cold, so I was not wearing sweater, I could manage to see the whole program like without extra baggage on my body. But ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं है, मतलब भड़ा है. This perfectly reflects that मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ. When I was giving Anjali, it was a present, I was giving Anjali to Ma Durga. It was a pleasant moment for me. No full stop. For me, I prayed to God to give me healthy always and bless me for my studies. हर जगह पे स्वार्थ. Bless me and bless me. Studies. Chaka maro. During puja, our relatives come from other places, or we too go there and join them and do a lot of fun. Yeah, that's true. But at the last in Dashami, when the Durga Ma and her sons and daughter. अच्छा, daughter sons लिखा, daughter क्यों लिखा? But at the last in Dashami, when the Durga Ma and her sons and daughter were drowned in water. Sons and daughter, sons लिखा मैंने, पर daughters नहीं लिखा. Quarters कार्तिकेय गणेश में लोग खींच छोड़ देते, तो daughter क्यों लिखा? Being biased. Whatever. Sons and daughter were drowned in water. I felt very bad. Oh. सत्ती चुके चला है क्या दशमी दिन. Durga Puja is celebrated in all over India. इनको काट दिया है. To welcome माँ दुर्गा in her native place. जो ये सेंटेंस पहले होना चाहिए था, लास्ट में डाल दिया ये. मतलब कुछ भी एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता तो स्ट्रेसफुल होता है यार. सच्ची कुछ भी भर दो बस. 4.5 मिला. It's great thing, great. वाह, मजा आ गया. टीचर को क्या वाला हो गया पता नहीं मुझे. होता है एग्जाम्स में, ऐसा होता है, छोटी मोटी चीजें हो जाती है. फिर क्या आता है? आई थिंक इट्स अ लेटर. जादूगर मोरिका सम इंदिरा नगर पता नहीं कहाँ है, डाल दिया कुछ डेट. डियर अनीता, पता नहीं, जिंदगी में मेरे कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है ना रिलेटिव है. कभी मैं अनीता नाम के किसी भी सदस्य से नहीं मिली हूँ एक्सेप्ट टीवी शोज. पता नहीं, उसका भी पता नहीं. सेलिब्रिटीज. हाउ आर यू? आर इन ए इन कैपिटल लेटर ऑफ आर. मतलब दिमाग खो चुका है. हाउ आर यू? आर यू फाइन? Congratulations for your success in the final examination. Best of luck for your next session that is in class 8. Wow, ये सब देने को उसको पता है 8 होगा.
बताने की जरूरत नहीं है. आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू हैव पास्ड. I was very excited she got passed. I would have been very excited if she would have failed. Very, very, very excited. Do your studies nicely in 8-2. अपनी एज का बंदे कौन ऐसे बोलता है यार. Do more better in examinations and be healthy always. Examination and health don't go side by side. कुछ दिनों पहले मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा. मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है शुक्ना ड्राई फिश बन गई मैं. And be healthy always. I am dropping my pen here. मतलब ये लास्ट में हो गया बस इतने में मार्क्स मिल जाएगा. फिर एंडिंग डाल दो. I am dropping my pen here. हो गया. Send your letter to me to know what grades you got in your examination. Send your letter to me to know what grades you got in your examination. She would know now what she got in her examination. How will I know? Yours friendly Jhand. What the exam? ये तो वाह, पोस्टर भी बनाया हुआ है. नहीं दिखा सकती यार. ओके, ये वैल्यू एजुकेशन यार, ये सब्जेक्ट जो है ना बच्चों की जगह पे बड़ों को सिखाना चाहिए. ये सब्जेक्ट मुझे लगता है हमेशा रखना चाहिए स्कूल में. क्लास 10 तक, एक्चुअली 12 तक नहीं चाहिए, पर आई थिंक बच्चे बड़े होते होते इन चीज़ों का वैल्यू ही नहीं रहता. कि ये दे जस्ट मेमोराइज थिंग्स एंड द स्टोरीज एंड आंसर्स, ऐसी चीज़ें होती है. 7 का है फिर भी यार. आई थिंक बड़े होने के बाद ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए हर जगह पर. क्या यार, इसके लिए कर्ज पे कल भी कह सकते. बेचारे बच्चों के ऊपर इतना दबाव होता है, सांस ही नहीं में दबाव यार. बचपन से इतना गिल्ट मतलब डाला जाता है यार. खा ले बेटा, खा ले, नहीं तो वो आगे ना तेरी माँ को उठा के लेके जाएगा. बच्चा मेरी मम्मा को उठा के लेके जाएगा, खा लेते हैं. इतना गिल्ट बचपन से, इतना गिल्ट. तो समझो यार बच्चों पे कितना वो बीतती होगी यार, आफत. क्या करते हो यार, क्या. अपने बच्चों के साथ मत करना यार प्लीज़. सोचो यार खुद पे कितनी गिल्ट. अभी भी मेरी मम्मी देखा ऐसे बिहेव कर रही है ना, एक दिन मैजिक हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से. इतना गिल्ट कौन डालता है यार, वो भी अपने बच्चों पे. मतलब दूसरों पे भी मत डालो, पर इतना गिल्ट. जलपेन करना एक अलग ही मजा था. एकदम ग्लो करके आता है. फेस पे लगा के रखा, एकदम ग्लो मारा है पूरा. शीट मास्क सब कुछ लगा के रखा है. वाह. और ये क्या है, इंग्लिश का है यार. इंग्लिश का हाफ ईयरली का है. ये लेटर है शायद, मैंने लिखा है इसमें. अनन्या को लिखा है, मेरे एक दोस्त है अनन्या बोर्दोली. हर टाइटल इज नो मोर बोर्दोली नाउ. ठीक है, नहीं बोलेंगे. जो अनन्या में whatever. Dear Ananya, how are you? Are you fine today? I'm going to tell you about my aim in life. मुझे खुद ही नहीं पता था, उसको बताने चाहिए. डॉक्टर होगा, देखते हैं डॉक्टर ही होना चाहिए. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, लिखा बोला था ना इन माई लाइफ. और बता देते उसके माता पिता के भी डॉक्टर है. एक डॉक्टर की बेटी को मैं डॉक्टर के होने के बारे में बता रही हूँ. वाह, ग्रेट. बिकॉज आई लाइक टू डू दोज थिंग्स दैट डॉक्टर यूजुअली डू. आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस ऑल्सो. ओके या साइंस में इंटरेस्टेड है तो डॉक्टर बनना है तो क्या, ऑब्वियसली. बट ओनली थिंकिंग इज नॉट एनफ. True, Mister. एकदम true. I have to read more and more to achieve my goal. Just read and read. So for now, I'm dropping my pen here. Do tell me about your aim in life in your letter. बस हो गया, इतने में तो मार्क्स मिल जाएगा. बस कंक्लूजन डाल दो. I'm dropping my pen here. You're loving English, Mr. Da. मिल गया, 3.5 मिल गया. Enough. घूम रहा है. वाह, दिस इज रियली नाइस मैन. इतना सुंदर बना थे. ये शायद फर्स्ट एग्जाम होगा. अच्छे से लिखा, कैसे हो सकता है ये. लेकिन मैं भूल चुकी कि मैं अच्छे से लिखा करती थी सुंदर हैंडराइटिंग से एग्जाम्स में. बिकॉज अभी तो वाह, इतना साफ और सुपर. बहुत प्रैक्टिस किया हुआ. वो काटा भी तो जो इतना क्लीनली काटा, एकदम प्रेस्ड. एकदम स्केल लेके डायग्राम ड्रॉ किए.
वाह इतना अच्छा, अच्छे से लिखा। मेरा हैंडराइटिंग खराब नहीं है, मैं वैसे बहुत अच्छे से लिखती, पर एग्जाम्स में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लग टीचर पे भी गलत इंप्रेशन पड़ेगा, इस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा, इतने ख़राब तरीके से लिखा है, हैंडराइटिंग इतना ख़राब है। मैं क्या करूँ, इतना एग्जाम स्ट्रेस होता है यार, एंग्जाइटी होने लगता है मुझे, एंग्जाइटी क्या नहीं दिख रहा यार। क्लास 8 का भी दिख ही लेती, क्या ही हो जाएगा, सामने पर देख लेती हूँ ना, फिर से वही काजीरंगा हाउस फेवरेट। मेरा फर्स्ट हाउस था नंबर था, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, मैं उस दिन एब्सेंट थी, आई थिंक आई वाज इन क्लास 1, मैं उस दिन ही एब्सेंट थी, इस दिन हाउस अलॉट हुआ था हम सबको। और फिर मुझे पता चला मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स का तब जब था, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, विच यूज्ड टू कॉल बंगाली ग्रुप, बिकॉज सब बंगालीज थे। तो मैं एब्सेंट थी, तो उन्होंने बोला, वो सबके सब नंबर में थे सबके सब, तो उन्होंने बोला तू भी नंबर में मेरे पास, चलो ठीक है तू भी नंबर में, बढ़िया लिखा यार। और मेरा पता है, मुझे इतना मूड स्विंग होता है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, सबको नहीं पता मतलब मेरा हैंडराइटिंग ना ऐसे चेंज होता है, ऐसे एक लाइन से लिखूंगी तो दूसरा सुंदर से ही लिखूंगी, पर अलग अलग तरीके से, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये एक ही इंसान ने लिखा है। बोर्ड सो इजी, जस्ट इमेजिन मेरे बोर्ड होने का कैपेसिटी क्या है, हर छोटी छोटी चीज़ों से मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे किक चाहिए, हर छोटी छोटी, कितना छोटा यार, मुझे इतनी गालियाँ पड़ी ना छोटे छोटे हैंडराइटिंग के लिए, पर मैं क्या करूँगा, मुझे ना बहुत क्लीन लगते हैं छोटे छोटे हैंडराइटिंग, मैं क्लीन भी लिखूंगी, पर टीचर्स को देखने में, क्या तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है यार, चश्मे का पावर बढ़ा, ऊपर से मेरी आंखों में भी चश्मा था, तो समझो यार, मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो अपने आंखों दिखाओ ना यार। तो मुझे ना बहुत क्लीन लगता था, छोटे अभी भी लिखती हूँ, तभी तो मतलब ऐसा हो गया, जितना छोटा करो उतना ही सुंदर मुझे बहुत क्लीन लगता था। सैनिटाइज्ड कैसे, क्या रिलेट कर रही है, क्या वाव डेफिनेशंस के लिए पता नहीं था, डेफिनेशन कंप्यूटर का इतना गैप छोड़ा है, इतना सारा गैप छोड़ दिया, फिर से गिरेगा ये। आई लव्ड अलजेब्रा, बहुत फेवरेट होगा, मज़ा करके निकालो ऐसे, मज़ा आ गया था, सबसे इजी है ना, क्या सिंप्लीफाई करो, मज़ा आ जाएगा। तो प्लस माइनस सिंप्लीफाइड में इतना मज़ा नहीं आता, पर सिंप्लीफिकेशन में बहुत मज़ा आता था, वॉज माई फेवरेट पार्ट, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा। पहले जब नया नया अलजेब्रा आता था, मुझे इतना तो याद नहीं आया था क्या व्हाट इज़ दिस शिट, और मुझे ना स्कूल में कुछ समझ नहीं आता था, मैथ्स भी पढ़ा था, फिर मैं आके फिर मम्मी या पापा समझा देते थे सब, फिर थोड़ा समझ आता था, फिर मज़ा आता था। स्कूल में मैंने नहीं समझा था, तो घर में मज़ा आ जाता। आई थिंक आई वाज इन क्लास 5, आई थिंक जब पहले बार अलजेब्रा मिला था मैं इतना सुंदर लगता था ना यार, ग्राफ पेपर चाहिए सब, बाकी पेपर में कुछ होना है, ग्राफ पेपर तो मस्त, सब क्लीनली करते थे, सबसे गंदे से गंदा बच्चा भी अच्छे से करता था ग्राफ पेपर। क्यूट थिंग्स, क्यूट थिंग्स, मुझे भी कैसे चीज़ें क्यूट लगती है, ग्राफ पेपर क्यूट लगता है, बोलो सोचो मुझे क्या क्या चीज़ें क्यूट लगती हैं। क्या लिखा है मैंने पीछे, कलम से काटा है, रबर नहीं था मेरे पास, शायद एंसर्स लिखे होंगे, फिर ऐसे ठीक है, एक्सीलेंट के बेटा इतना अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मार्क्स भी मिला है मुझे, फुल मार्क्स भी मिले हैं, तो पता नहीं मुझे व्हाट्स दिस मैथमेटिक्स, दिखना ही नहीं है सर, सब A1 है। इंग्लिश ऐसा नहीं लग रहा है, इतना A1 में जलन हो रही है अभी मेरे पुराने हिसाब से, कैसे कर लिया, कैसे ही कर लिया, बिल्कुल मज़ा नहीं है। those days यार कितना डर लगता था यार, हम लोग जब मैं तो हर एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के जाने के बाद मैंने ऐसी हूँ कि मैं खुद से एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ, जितना भी एग्ज़ाम बढ़िया जाए सब लिखा, फिर भी लाइक ऐसा लगता था यार ख़राब होगा एग्ज़ाम, टीचर मुझे मार्क्स बोल ही क्यों ना दे, ऐसे कभी कभी ऐसा होता था यार कि हम लोग कुछ चीज़ें टीचर बता देते थे कि हाँ तुम्हें इतना मिला है, जितना भी मेरे मुँह पे ही बोलते, फिर भी ऐसे मैंने इतना अंडर कॉन्फिडेंस बोलो, मुझे मार्क्स भी पता चल गया, मुझे ग्रेड्स भी पता चल गए, सब कुछ पता है, फिर भी मैंने मम्मी से डर गई कि रिजल्ट डे में मम्मी जाएगी रिजल्ट लाने। जैसे इमेजिन मैं घर से यहाँ से रिक्शा से उठती थी सीधा स्कूल के बाहर, पूरे रास्ते, यू वोंट बिलीव, पूरे रास्ते
ज्ञानी सागर जयकपी, जितने भी मंत्र मुझे याद है, जितने भी मेरी मम्मी ने सिखाए होंगे मुझे, जितने भी नहीं भी सिखाए होंगे, सब गाने, सब मंत्र गाने, पुष्पांजलि अंजलि सब बोल लेती थी तब तक, पूरा अंदर जाने तक। फिर जाते ही फिर बाहर कॉलेज स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होता था कि टॉपर्स का नाम होता था बोर्ड पे, और दैट इज़ लाइक द मेन गोल। वहाँ पे नाम आ गया, ऐसे ही जाके ऐसे नाम आ गया, शांति। अभी जो भी हो देखा जाएगा, बोर्ड में नाम आ गया तो अभी अपना वो शहर में ढिंडोरा पीट चुका है कि नाम आ चुका है, तो अभी शांति, रिलैक्स्ड। चलो वहाँ पे जाओ अंदर, फिर ऐसे बिहेव करो कि और मैं एक चीज़ बताऊँ कि जितने बार मैं रिजल्ट डालने गई हूँ, मैं एक बार भी मतलब बैठी नहीं, क्या मतलब मम्मी रिजल्ट लेने, रिजल्ट सब तो चिल मार के पेरेंट्स के साथ बैठ के ऐसे देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और मेरी मम्मी वेट्स, अब मैं खड़ी हूँ साइड में ऐसे वेट्स, देख लिया, फिर चलो फिर टीचर्स रिमार्क्स देंगे ऐसा कुछ। क्या यार, मुझे एक चीज़ याद है, मेरे दोस्तों को भी बताओगे यार, शर्म आ रही है बताने में, क्या है क्या ये ना बता ही सकते हैं, इतने साल हो चुके हैं इस चीज़ को। आई थिंक आज इन क्लास 5, ओके। सो एक होता है ना, एक ट्रांजिशन होता है क्लास 4 टू क्लास 5, क्योंकि क्लास 5 में अभी का पता नहीं, क्लास 5 में हमें पहली बार हमें साइंस इंट्रोड्यूस कराया गया था, जनरल साइंस, तो हमारे हो गए थे मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया था, तो आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स थे हमारे क्लास 5 में, तो इट इज़ लिटिल टफ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसे भी तो पढ़े, क्योंकि मतलब साइंस एक्स्ट्रा आ चुका है, थोड़ा अलग था ना वो, तो उस बार पता नहीं मुझे क्या थोड़ा सा, मुझे पहली बार मुझे वो भी साइंस में A1 से A2 मिला था, वो फर्स्ट टाइम भी था रिजल्ट लाने में। थोड़ा तो शक था कि यार कुछ तो होगा, फिर गंदा तो हुआ था एग्ज़ाम, पता था, फिर भी था कि यार हो जाएगा, चल जाएगा। मुझे पहली बार A1 से A2 आया था, हालांकि साइंस नया सब्जेक्ट था, फिर भी A1 से A2 इज लाइक माय गॉड, ह्यूज थिंग। मुझे ज़्यादा मैंने ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी फेल कर गई थी, ऐसा लग रहा था मैंने फेल कर लिया। बोर्ड में नाम था, फिर भी पहली बार ऐसा हुआ था कि बोर्ड में नाम था, जान में जाना, एक बार क्लास में गए, मम्मी ने खोला, ठीक है, ऐसे दिया, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मम्मी ने खोला ऐसे हो गया, एक्सप्रेशन चेंज, देख रही ऊपर से मैं, साइंस का पेपर आया, हाँ ऐसे था, हाँ ऐसे, मतलब यहाँ पे रखा हुआ आपको दिखेगा नहीं, ऐसे हो गया A2, ऐसे देखा मम्मी ने, मैं ऐसे इतना पढ़ सकती, ऐसा ये पढ़ाया तूने, ये फिर एक मिनी माइक्रो सेकेंड में टक, और मेरे हाथ से कान पर, मेरे आंखों से पूरा पानी गिरा नहीं, पूरा जम गया, और आई कुड फील, एक ब्लर्ड विजन होता है ना, कि आप नज़र उस कांस्टेंट एक साइड पे, पर आप एनालाइज कर सकते हो कि चारों ओर क्या हो रहा है एक अंदाजे से। तो मुझे पूरा समझ आ रहा, मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त थे, वो लोग अपने पेरेंट्स के सब ऐसे देख रहे थे, और जैसे टपक गया, टपक, ऐसे सब ऐसे देख रहे थे कुछ, मैं पूरा ऐसे, फिर देखा सब ठीक है, फिर भी उसी पे अटकी हुई है मेरी मम्मी। फिर टीचर के पास गए, टीचर बोलती है ताक नामारी वो बूझा वो ताक मतलब उसको समझाइए, मत मारिए। फिर निकले, मेरी मम्मी 100 किलोमीटर आगे, मैं 200 किलोमीटर पीछे, मेरी मम्मी 100 किलोमीटर आगे, मैं 200 किलोमीटर पीछे खड़ा है। फिर आते ही दूसरे रूम पे घुसते ही मैंने दरवाज़ा लगा लिया, ऐसा लग रहा था मैंने मतलब फेल कर गई, मैं कोई बड़ा एग्ज़ाम फेल कर गई मैं, ठीक है, ऐसा लग रहा था। पूरा दिन खुला नहीं दरवाज़ा, फिर रात को खुला था, पापा ने थोड़ा सा मसाला डाला और खोल दिया। मतलब ऐसे हालात से गुजरे हम लोग, इतना गिल्ट, जस्ट इमेजिन, एक छोटे सा क्लास 5 के एक बच्चे के ऊपर इतना जरूर, जस्ट इमेजिन है। और उधर हमारे दोस्त DEF ग्रेड में भी खुश थे यार, पेरेंट्स भी दस थे, कोई नहीं बेटा, इसलिए ना अच्छे ग्रेड्स लाओ ही मत,
एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ ही मत, एक्सपेक्टेशन रखो ही मत यार, नीचे नीचे ही रहो, नीचे थोड़ा ऊपर जाओगे तो बढ़िया, उधर जाओगे तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, ऊपर जाओगे तो शाबाश माशाल्लाह। पर टॉपर्स को ज़्यादा डांट पड़ती है यार, इससे अच्छा यार बिंदास रहो यार। वैसे भी पता नहीं यार, आजकल स्पेशल, आजकल की बात भी नहीं है, तब भी था कि इतना प्रेशर देते हैं स्कूल के बच्चों पे। नहीं, मुझे अभी रियलाइज होता है कि क्या होगा कि कोई कौन मुझसे क्या पूछ रही है, तुम्हें तुम्हें 7 में कितना मिला था, तुम टॉपर थी क्या स्कूल में, बोर्ड्स में नाम आते थे तुम्हारा, नहीं तब के लिए वो अलग जान की बात है, फिर डज नॉट मैटर। इस पढ़ाई के चक्कर में मैंने कितने सारे चीज़ें मिस कर दिया, फन ये वो, मेरे दोस्त लोग मज़े करते थे, बात करते थे, और मैं ब्रेक टाइम हो, गेम्स पीरियड हो, जो भी कुछ हो, कोने में जाके पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, लिखती। जस्ट इमेजिन, बचपन से जस्ट इमेजिन। अब ऐसा भी कोई अगर मेरे साथ भी बैठा है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब है शायद, तो मेरे साथ बैठती थी, तो वो बातें कर रही है, मैं सुन भी रही हूँ, पर इधर भी मेरा लगा पड़ा है, तो उधर में बच जाती थी यार। कभी टीचर की डांट से, कभी टीचर पूछ ले क्या बातें कर रहे हो, फिर बोल रहे नहीं मैम बातें नहीं कर पड़ रहे, फिर मैम बोली क्या कर रहे हो ये, फिर बता सकते थे कि यार मेरा वो था, कॉन्स्टेंट था दोनों तरफ की, यार ये भी बोल रही है मैं सुन रही हूँ, ऐसा टाइप बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई है यार। आई थिंक हमारे पास 12 तक का टाइम होता है, मतलब उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी रेकलेस हो जाती है ज़्यादा डिग्री से, पता नहीं मैंने खुद के लिए बना लिया वो। बट अभी भी ऐसा नहीं कि कर सकते हो पूरी ज़िंदगी में ही आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जॉब करते हैं, समय नहीं, समय हर किसी के पास ही होता है, समय निकालना पड़ता है। हम लोग अगर ऑफ मिल गया, पूरा दिन सो लेंगे, पूरा दिन लेटे रहेंगे, टीवी देख लेंगे, ये कर लेंगे, पर टाइम निकालना पड़ता है ना खुद के लिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जब तक खुद रियलाइजेशन नहीं होता है। पता नहीं यार, सब दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं इतना स्ट्रेस। मेरी एक दोस्त है, ठीक है, क्लास 7 में पढ़ती है वो कोई इतना स्ट्रेस है उस पर कि यार टॉपर बनना है यार, इस बार एग्ज़ाम में अच्छे करने। मैंने उसको बोला यार मुझे पता है कि उसको समझ नहीं आएगा, बिकॉज हर स्टेट ऑफ माइंड इज, उसको भी वो भी पहली बार इसी दौर से गुजर रही है ना, उसके क्लास 7 के दौर से, उसके एज के दौर से वो भी पहली बार गुजर रही है, और मैं गुजर चुकी हूँ उस दौर से। तो मैंने बोला था कि यार इतना स्ट्रेस मत लो, चीज़ें करो, कर भी रहे, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, और भाई पूज्य माता जी को बेस का अफसोस है, अभी पता चलता है कुछ बातों से, बात क्या कर सकते हो, वो समय तो चला गया, पर ऐसा नहीं कि मैं गुजर गई, कर सकती हूँ, पर फिर भी ना वो मोमेंट्स अलग ही फेज होता है लाइफ का, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली फ्री, यू लाइक ए फ्री बर्ड बैक उस स्टेज में। पर अभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ के रखती है कि अभी एक स्ट्रेस होता है, तब नहीं था ना, वो चीज़ें नहीं होती, तो वही नहीं होना चाहिए उस फेज में, इतना दबाव नहीं देना चाहिए। मेरे पे बहुत दबाव था, ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मम्मी का तो स्पेशली, मतलब आना ही है। जस्ट इमेजिन है रूटीन क्या था, स्कूल जाओ सुबह, वापस आओ, थोड़ा सो, पढ़ो, पढ़ते रहो, और एग्ज़ाम हो तो मतलब पढ़ते रहो बचपन से ही, जब तक मतलब वो ना हो जाए रिविजन, फिर सुबह उठ के फिर से पढ़ो, स्कूल जाओ, आओ, सो, पढ़ो, सो जाओ, पढ़ो, स्कूल जाओ, ये मतलब स्टडी ईट स्लीप, ईट भी विद स्टडी, नो ईटिंग विदाउट स्टडी, मतलब ईटिंग